حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اس کا کوئی بھی مسلمان تو انکار نہیں کرے گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جو معتدل مزاج ہوتے ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کی نسبت کا خیال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نسبت کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو معتدل مزاج سے دیکھیے گا، یہ نہ ہو میں جو بات کروں اور کتاب کے حوالے سے کروں، آپ اس کو میرا ذاتی موقف بنا لیں اور اس کے ذریعے کچھ مسائل پیدا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کیا ایمان لے کر آئے تھے، یعنی وہ مسلمان تھے یا نہیں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ربیع الاول کا پیارا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ عجیب و غریب کمنٹس پاس کر دیتے ہیں، جس کو جس کی نہ تردید ہو سکتی ہے اور نہ جس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ الکریم ایسے لوگوں کے لیے بھی اور معلومات کے اضافے کے طور پر بھی اپنا نظریہ محفوظ کرنے کے لیے، آپ حضرات کا نظریہ محفوظ کرنے کے لیے مختصر بات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے متعلق مسلمانوں میں، علماء اسلام میں دو موقف پائے جاتے ہیں۔ اکثر اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دونوں اسلام لے آئے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ اسلام نہیں لے کر آئے۔ اور یہ جو بعض کا قول ہے یہ علماء متقدمین کا ہے۔ علماء متاخرین میں اکثر اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھے اغلب وہ حضور علیہ السلام کے ایمان، حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ایمان لے کر آنے کے قائل ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں حوالہ جات دوں تو ٹائم زیادہ لگے گا، آپ اگر پڑھنا چاہیں بالکل 500-600 صفحات پر کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ حضرت جناب شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ اس کے اندر حوالہ جات بھی اور کن کن بزرگوں نے آپ کے والدین کو مسلمان لکھا وہ باتیں بھی موجود ہیں۔ میں مختصر اس میں ایک بات بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، اس پر پہلی دلیل یہ ہے، قرآن پاک میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج کے دور کے حساب سے ہم جب دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بخشش فرما، ربنا اغفر لی میری بخشش فرما، آگے کیا ربنا اغفر لی ولوالدی اور میرے والدین کی، میں دعا کروں تو میں کہوں میرے والدین کی بخشش فرما، اور یہ میرے لیے ایک فضیلت کی بات ہے کہ میرے والدین مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو جو فضیلت مجھے حاصل ہے حضور علیہ السلام کو یہ حاصل نہ ہو تو یہ بظاہر ججتا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ججتا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے مقتدی اور تمام جو ہے انبیاء حضور علیہ السلام کے مقتدی بنے ہیں، حضور سید الانبیاء امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت جناب یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں چند دنوں یا چند ماہ رہے، ان کا تو سلسلہ یہ ہو کہ وہ جناب جس مچھلی میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اور یہ جو علماء وہابیہ ہیں وہ بھی اس بات کو غالباً مانتے ہیں، اور انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے۔ تو ہم مسلمان تو ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی نسبت اور تمام انبیاء کی نسبت کا خیال کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقتدی ہیں جس مچھلی میں وہ رہیں وہ جنت میں جائے گی، تو جس مچھلی میں یونس علیہ السلام چند دنوں رہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی، تو امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پیٹ مبارک میں رہے ہوں، بطن اقدس میں رہے ہوں، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، ہم بیش 9 ماہ رہے ہوں۔ اور پھر جو نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، مختلف انبیاء اور مختلف مقدس ہستیوں کی
पेशानी पे और पीठों में रहा, तो उस नूर को जिस जगह अल्लाह ताला ने रखा है मुख्तलिफ अदवार में, तो क्या हुज़ूर जिस जगह पे रहें, हुज़ूर का नूर है, तो क्या वो माज़अल्लाह जन्नत में नहीं जाएँगे? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? तो ये वो वाली बातें हैं जो एक कॉमन सेंस रखने वाले भी हज़रात समझते हैं। ख़ैर मैं दलाइल देने के लिए नहीं बैठा, मैं मौक़िफ़ बयान करने के लिए बैठा, दलाइल तो बहुत सारे बयान किए जा सकते हैं। अब ये है कि उलमाए किराम 3 तरीकों से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ईमान को साबित करते हैं। पहला तरीका ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी आबा व अजदाद हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर रहे। जब दीन इब्राहीमी पे रहे, तो दीन इब्राहीमी ज़ाहिर-सी बात है, इसकी तारीफ़ात तो हमारे कुरान पाक में मौजूद हैं। तो इस एतबार से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन मुवहिद थे और अल्लाह ताला को एक मानने वाले थे, तो ये मुसलमान कहलाए। और दूसरे नंबर पे इनका जो मामला है, ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन जिस दौर में थे, उस दौर के एतबार से वो ज़माना फ़ितरत था। कौन-सा ज़माना था? ज़माना फ़ितरत, यानी वही रुक जाने का ज़माना था। कोई नबी नहीं था, तो जब कोई नबी ना हो तो उसका कलमा पढ़ना ज़रूरी भी नहीं होता, उसका बंदा मुकल्लफ़ और पाबंद भी नहीं होता। लिहाज़ा इस एतबार से भी वो मुवाहिद तो थे ही थे, लेकिन ज़माना फ़ितरत के एतबार से वो किसी नबी की पैरवी नहीं कर रहे थे और ये ज़रूरी भी नहीं था। तीसरी बात ये है कि उलमाए किराम ने इसको यूँ साबित किया कि आपके वालिदैन ईमान वाले थे, ईमान लेकर आए। वो यूँ कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से हज़रत जनाब अब्दुल्ला, हज़रत जनाब अम्मी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ज़िंदा फ़रमाया हुज़ूर के ऐलान नबुव्वत के बाद, और वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। और इस पर भी दलाइल दिए जा सकते हैं। वैसे एक बात करता जाऊँ, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों को रब ताला ने हुज़ूर के सदक़े से ज़िंदा किया। हुज़ूर की दुआ और हुज़ूर के मुअजिज़े के ज़रिए ज़िंदा हुए, 2 बेटे। तो जो हुज़ूर के सहाबी हैं ऑलरेडी, जो हुज़ूर के मेज़बान बनने का शर्फ़ हासिल कर रहे थे, उनके बेटों को रब ताला ज़िंदा फरमा दे, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन उनको रब ताला हुज़ूर के सदक़े से ज़िंदा फरमा दे, तो ये क्या बात है। वैसे भी तो हमने मरने के बाद क़यामत वाले दिन उठाया जाना है हमें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम रब ताला की कुदरत के मज़हर हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को ज़िंदा फरमाया, यूँ कलमा पढ़कर ये दुनिया से दोबारा चले गए। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ के लिए ऐसा हुआ। अच्छा, ये बात भी होगी जो उलमा हदीस दानी और अस्मा और रिजाल पर उबूर हासिल करते हैं, रखते हैं, उनको पता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को ज़िंदा किया गया, ये हदीस ज़ईफ़ है। तो अब बाद लोग कहेंगे ये तो हदीस ज़ईफ़ है, इससे तो इस्तिदलाल नहीं हो सकता। याद रख लें, पहली बात तो ये है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, चलें इसको मान लेते हैं, दुरुस्त है ये बात। लेकिन ये एक हदीस नहीं है, मुख्तलिफ तुरुक से ये हदीस है, ये मुख्तलिफ रावियों से ये हदीस है। और जब रावी ज़्यादा हो जाएँ, असनाद ज़्यादा हो जाएँ और मुख्तलिफ तरीकों से आए, तो फिर वो जो हदीस होती है, वो सही के दर्जे पर भी पहुँच जाती है और वो हसन के दर्जे पर पहुँच जाती है। तो इस एतबार से इस हदीस को भी ये जो है इस्तिदलाल के तौर पर इस्तेमाल उलमाए किराम ने किया है। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर के वालिदैन की निस्बत का हया करने वाला बनाए। अब एक बात है चोट करने के लिए, जो मेरे वालिदैन को बुरा भला कहे, मैं तो उससे ताल्लुक़ तोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जो हुज़ूर के वालिदैन के बारे में बुरा भला कहे, माज़अल्लाह ईमान पर कलाम करे और ईमान पर भी इस तरह का कलाम करे कि बंदा सोचने में मजबूर हो जाए, ये क्या कह रहा है? तो क्या उसके पीछे नमाज़ हो जाएगी? सोचिएगा ज़रूर और ये भी देखिएगा कि हमने किन लोगों को अपना इमाम बना रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत हुज़ूर के वालिदैन के ईमान के कैल हैं। तो आप उलमाए अहले सुन्नत के पीछे हाथ आँखें बंद करके बाँध सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बदगुमानियाँ फैलाते हैं और हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा अलैहि रहमत से मुतल्लिक़ भी मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की। मिर्ज़ा इंजीनियर ने भी बड़ी एक अजीब बात की। कहते हैं माज़अल्लाह हज़रत इमाम आज़म हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में माज़अल्लाह बकवास करके गए हैं। उसने भौंक जाने का भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हालाँकि आपको पता है किताबों में तब्दीली बाद दफ़ा होती रहती है। तो मुख्तलिफ़ अल फ़िक़्हुल अकबर के जो नुस्ख़े हैं,
एक में ये है कि मा माता, ठीक है? दूसरी जगह पे है माता। तो इन दोनों के एतबार से मा माता का माना होता है वो नहीं मरे अलल कुफ़्री, कुफ़्र पर। अगर ये है कि मात अलल कुफ़्र, वो मरे यानी फ़ौत हुए कुफ़्र पर, तो दोनों का तर्जुमा मुख्तलिफ तभी होता है जब यहाँ पे मीम जो है नाफ़िया ना हो और हो। तो हमारा नज़रिया ये है कि अल-फ़िक़्हुल अकबर के अंदर बहुत से नुस्खे हैं, तो अक्सर नुस्खों के अंदर ये है कि मा मात अलल कुफ़्र, वो दोनों कुफ़्र पर दुनिया से तशरीफ़ नहीं ले गए बल्कि वो ईमान लेकर आए। तो किसी एक किताब में, किसी एक नुस्खे में ऐसा हो जाना प्रिंटर वग़ैरह की गलती से या किसी की शरारत से, तो ये तो ज़ाहिर है दुनिया है, यहाँ तो बहुत से लोग पाए जाते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ सोच रखने के। माज़रत वीडियो कुछ लंबी हो गई लेकिन बहुत अहम है, इसको ज़रूर देखिएगा।